اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا 7واں روزہ ہے۔ میں اور میری ٹیم آپ کے سامنے آج ایک حسین اور بڑے اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا ساتھ انہی محبتوں سے دیں گے اور آپ کے انشاءاللہ کمنٹس میں شامل کروں گا۔ ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میں ان کا اور میری ٹیم مشکور ہیں۔ آج کا دن جس کو ایک نسبت خاص حاصل ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے، انشاءاللہ میرے مہمان جو میرے ساتھ آج موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں، اسی موضوع پہ آج لب کشائی کریں گے۔ میری دائیں جانب میرے بڑے خوبصورت دوست، حسین باپ کا حسین بیٹا، عالم دین، اسکالر، صاحبزادہ قاری ابو بکر تبسم شاذلی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میری بائیں جانب شہر گجرانوالہ ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام، بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا لب و لہجہ، حسین ثنا خان مصطفیٰ بھائی حافظ کیسر محمود صابری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اور دیگر جتنے دوست اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کاشف بھٹ صاحب ہیں، خالد جماعتی صاحب ہیں، ہمارے بھٹ صاحب ہیں، اور دیگر جتنے ٹیم ممبرز ہیں، سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید ہے۔ اور تھوڑی تاخیر کی معذرت، کچھ موسمی اثرات بھی اور حالات ایسا ہیں کہ گجرانوالہ کا ایٹماسفیئر آپ کو پتہ ہے بارش شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور وبا بڑی سخت ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت میں ہی پروگرام کو رہتے ہوئے اور وقت پر اس کو شروع کر کے ختم کریں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید حافظ کیسر صاحب سے ہم تلاوت قرآن مجید مختصر کروائیں گے، ایک نعت شامل کریں گے اور موضوع کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ اسنان بیٹے یہ دے دے مائک دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشكرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن مجید سے آج کی نشست کا آغاز ہو چکا۔ جس طرح ایک عشاقان مصطفیٰ کی ریت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ ذکر نعت کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو، ہم ایک ترتیب سے محفل کو شروع کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے فوراً بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی دلیل ہے کہ جہاں جہاں توحید کا ذکر ہے رسالت کا بھی اس کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ نے نغمہ توحید بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ اب میں التماس گزار ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار عطا کیجئے، تاکہ جب ہم نعت سن کے لوٹیں گے تو آج اپنا جو موضوع ہے اس پہ انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب سے میں بڑے اہم چند سوالات کے جوابات شامل کروانا چاہتا ہوں حاضری کے طور پہ حضور۔ انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ عطا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں، کیا کہنے، جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں، اپنے بیڑے پار ہوئے ہیں، بہت خوب، کیا اچھا ہے افسر۔ بیڑے پار ہوئے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ نعت نبی پڑھتے رہنے سے نعت نبی پڑھتے رہنے سے لہجے خوشبودار ہوئے ہیں، جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بسم اللہ۔ رب اس کا ہوتا گیا ہے، رب اس کا ہوتا گیا ہے، جس کے سرکار ہوئے ہیں، ہوئے ہیں، جس کے سرکار ہوئے ہیں، سبحان، جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب افسر۔ ان کی گلیاں گھومنے والے، ان کی گلیاں گھومنے والے، جنت کے حقدار ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ، جنت کے حقدار ہوئے ہیں، جب سے وہ دلدار ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان آنکھوں کی
جن کو تیرے دیدار ہوئے ماشاءاللہ جن کو تیرے دیدار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جب سے وہ دیدار ہوئے کیا بات ہے ماشاءاللہ خوبصورت مقطع ہے سماعت فرمائیں کچھ شعر دے دیں دیکھیے ان کا فیض تبسم دیکھیے ان کا فیض تبسم دستے دل گلزار ہوئے دستے دل گلزار ہوئے سبحان اللہ جب سے وہ دلدار ہوئے جب سے وہ دلدار ہوئے اپنے بیڑے پار ہوئے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان میں ایک بات بتاتا چلوں سبحان اللہ جماعتی صاحب اور کاشو بھٹ صاحب یہ کلام جو بھائی نے پیش کیا ہے یہ کلام صاحبزادہ ابو بکر صاحب کا لکھا ہوا کلام سبحان اللہ یہ ایک شاعر ہیں اس کلام کے مالک نے ان سے نوکری لی ہے ماشاءاللہ ثم الحمدللہ ان کے بڑے خوبصورت کلام بڑے خوبصورت کلام ثنا خان حضرات پڑھتے ہیں اور تضمین لکھنے میں ان کو مالک نے ایک اور یہ قلم میں یہ تاثیر دی ہے کہ کلام نیا ایجاد کرنا لکھنا تو ایک الگ سی بات ہے وہ جس طرح عطا ہوئی آپ کو وارد ہوا آپ نے لکھ دیا جب کسی باؤنڈری میں رہ کے لکھنا ہو تو کسی کی جو تھاٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہو مطلب تضمین لکھنی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ مشکل ہے جی تضمین مشکل ایز اے شاعر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ تضمین بالکل مشکل فن ہے تضمین کو اگر سمجھنا ہو تو ایک مصرے میں ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ تضمین جو ہے یہ جو مین کلام ہوتا ہے شاعر کا اس کے لیے یہ جیک کا کام کرتی ہے سبحان اللہ کہ اس کے شعر کو تضمین جو ہے وہ اٹھا دیتی ہے واہ 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 ماشاءاللہ اس حوالے سے ایک مشکل آپ نے یہ بڑا خوبصورتی سے اس کو نبھایا ہے اور یہ مجھے جب آپ نے اعظم چشتی صاحب کی اسی بزمیش کے اسٹوڈیو میں آپ نے ریکارڈنگ کروائی لاسٹ تو وہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا وہ مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے میں اس کو اکثر سنتا رہتا ہوں آپ نے وہ بہت خوبصورت لکھا اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور میں چاہتا ہوں ریپڈلی میں موضوع کی طرف آؤں اور آپ کے اس پہ جو ہے نا وہ کمنٹس میں لے لوں جلدی آپ کی صورت میں آج دن ہم منا رہے ہیں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے حضور غزوہ بدر کو اس دن کو اس یوم کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اس حوالہ سے روشنی ڈالیے گا احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآبائہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین بہت شکریہ آزاد بھائی آپ نے دوبارہ بزم عشق کے پلیٹ فارم پر مجھ ناچیز کو دعوت دی اور ایک بہت خوشگلو اور خوش لحن ثنا خان محترم حافظ قیصر محمود صابری صاحب کی معیت میں مجھے بٹھایا اللہ پاک آپ کو دونوں کو عزتوں سے نوازے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ آج کی گفتگو کا بڑا اہم ہے اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ ایک طویل وقت کا متقاضی ہے تو میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا لیکن اشارے ایسے کروں گا کہ اگر ان کی تشریح ایک جملے کی اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کے لیے بھی گھنٹوں درکار ہیں جی بالکل اس لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی غزوات لڑے گئے جی
ग़ज़वा उहद की सख्ती से कौन वाकिफ़ नहीं है? ग़ज़वा उहद ऐसा सख्त मार्का था जिसमें ग़ज़वात के अंदर सबसे ज़्यादा सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए। जी बेशक। और ग़ज़वा अहज़ाब उससे बिल्कुल थोड़ी देर बाद हुआ, और उसके बारे में कुरान मजीद का एक जुमला है, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, कि ग़ज़वा अहज़ाब की सख्ती इतनी थी कि मुसलमान अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लग गए थे। अल्लाहु अकबर, इतनी सख्ती थी। इतना सख्त वक्त। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन का जिक्र भी आता है, वह यौम हुनैन के नाम से उसका सारा वाक़या 10वें पारे के अंदर मौजूद है। फिर फ़तह मक्का, उसके बाद हुदैबिया, इस तरह ग़ज़वात जो हैं। लेकिन आप ये बात गौर करें कि किसी ग़ज़वा को भी यौमुल फ़ुरक़ान नहीं कहा गया। हाँ हाँ माशाल्लाह जी। यौमुल फ़ुरक़ान क्या होता है? फ़ुरक़ान कहते हैं हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। माशाल्लाह। ये आज के दिन को 17 रमज़ानुल मुबारक को जो ग़ज़वा बदर लड़ा गया, आज के दिन को, सारे दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कह दिया गया। माशाल्लाह। और यही फ़ुरक़ान का लक़ब किसी और चीज़ का भी है। वो क्या है? 19वां पारा है, सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत है। इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। क्या महबूब बरकत वाली है वो ज़ात जिसने आपकी जानिब फ़ुरक़ान उतारा है। माशाल्लाह। तो जिस तरह कुरान फ़ुरक़ान है, कुरान हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है, इसी तरह आज का दिन भी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी अहम पॉइंट है एक। अब इसके देखें कि यौमुल फ़ुरक़ान इसको कहा क्यों गया, जी जी। बाकी ग़ज़वात को क्यों नहीं कहा गया? हालांकि सख्तियों के एतबार से बाकी ग़ज़वात बहुत ज़्यादा सख्तियों वाले थे। ग़ज़वा बदर को क्यों कहा गया? आपको मालूम है कि ग़ज़वा बदर को इसलिए कहा गया क्योंकि जो बाद आने वाले ग़ज़वात हैं ना, उनमें मुसलमान जो लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, उनके जहन में कहीं ना कहीं बदर का एक सिनेरियो मौजूद था कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, वाह ये बड़ी अहम बात है, फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएंगे। लेकिन बदर के मैदान में जिहाद करने वालों को ऐसा कोई यकीन नहीं था, इसलिए कि जब ग़ज़वा बदर का एक मुशावरती इजलास हो रहा था मदीना शरीफ में, तो जो मुहाजिरीन हुजूर के साथ हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे, वो तो हुजूर के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार थे। हुजूर ने मुशावरती इजलास में एक सवाल किया कि भाई अंसारियों तुम क्या कहते हो ख़ास। अब इस सवाल का मकसद क्या था? इस सवाल का मकसद ये था कि जब ये अंसार के लोग यानी औस और खजरज के कबीले के लोग हुजूर को लेने मक्के आए थे, बैत उक़बा उला, बैत उक़बा सानिया में, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट साइन ये किया था कि आप हमारे यसरब में तशरीफ़ लाएं, हम यसरब की हिफाजत करते हुए, यसरब में रहते हुए अगर कोई आप पर हमलावर होगा तो हम उसका पूरा दिफा करेंगे, अपनी जान माल औलाद सब कुछ लुटा देंगे। अब वो सवाल इस तनाजुर में था कि भाई तुम्हारा एग्रीमेंट यसरब की हुदूद तक था, वाह 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 वाह, लतीफ बात। लेकिन हम लड़ने जा रहे हैं मदीने से बाहर। अब अंसारियों तुम्हारा क्या ख्याल है? अब खजरज के सरदार हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि हम उस एग्रीमेंट के पाबंद हैं। या रसूल अल्लाह, इधर बदर है, इधर समुंदर है। बदर खुश्की का इलाका है, समुंदर एक तरी का इलाका है। इधर जाएंगे तो फिर कोई चांस है कि हो सकता है मारे जाएं, हो सकता है जिंदा बच जाएं। समुंदर से लड़ने वाला आज तक कोई जीत नहीं सका। या रसूलल्लाह, हुक्म करें हम ये मैदान छोड़ के समुंदर में भी कूद जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसी वक्त हजरत मिकदाद खड़े हुए एक कोने से, कुर्बान जाएं। क्या इसीलिए यौमुल फुरकान कहा जाता है? माशाल्लाह। क्या ये यौमुल फुरकान की बात हो रही है? हजरत मिकदाद खड़े हुए, कबीला औस के सरदार। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम कोई बनी इसराइली कौम तो नहीं है ना कि मूसा को कहें इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, मूसा तू और तेरा खुदा जाके लड़, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात क्यों कही? हालांकि बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से पत्थर से 12 चश्मे निकलते हुए देखे हैं। बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से मकामे तीह में सख्त गर्मी में अपने सरों पर बादलों को साया किए हुए देखा है। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, ये पूरे 3 रुकू पढ़ जाऊंगा अगर मैं बनी इसराइल की इनामात जो अल्लाह ने जिक्र किए हैं। बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से असा मार के दरिया को रास्ता बनाते हुए देखा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर मैं तुम्हें दरिया से निकाल सकता हूँ
अगर मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम प्यासे हो तो तुम्हारे लिए पत्थरों से पानी निकाल सकता हूँ। अगर तुम दुनिया के खानों से तंग आ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतार सकता हूँ। बेशक। अगर तुम गर्मी की शिकायत करते हो तो मैं बादलों का साया कर सकता हूँ। तो जब मेरा नबी ने कहा कि जाओ कौम अमालका से लड़ो जाके, तो तुमने ये गुमान कैसे कर लिया कि मैं तुम्हें शिकस्त होने दूंगा। इसी का इशारा हजरत मिकदाद ने दिया। कहा या रसूल अल्लाह हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने बादलों को साया करते हुए देखा था। महबूबा उन्होंने पत्थरों से पानी निकलते हुए देखा है। हमने एक ही चीज देखी है जिसे तेरा दीदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उन्होंने सब कुछ देखा, हमने महबूबा तुझे देखा है। आप हुक्म कीजिए, अगर आप कहें तो हम अपने घोड़ों समेत समुंदर की तहों में भी उतर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, इसलिए आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसको यौमुल फुरकान कहा क्यों जाता है। बाकी जंगों में सहाबा किराम के जहन में तसव्वुर था कि भाई हुजूर के नाम पर निकलोगे अल्लाह मदद करेगा। बदर में निकलने वालों को यह यकीन नहीं था, इसलिए इसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। अगर बगैर किसी यकीन के, बगैर किसी और इस तरह की शहादत के तुम दिफाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकलते हो और तुम्हें किसी बात का यकीन नहीं बल्कि अपनी मौत का यकीन है, उधर असले से लेस होकर आ रहे हैं, उधर तलवारें हैं, तुम्हारे पास लकड़ी के बाले हैं। तुम 313 के बाद सिर्फ 8 तलवारें हैं, चंद ज़िरे हैं, 2 घोड़े हैं, चंद ऊँट हैं, और तुम निकल पड़े हो सारा कुफर मिटाने के लिए। तो ये है यौमुल फुरकान के आज हक और बातिल के में फ़र्क का दिन है, जिस दिन बगैर साजो सामान के, बगैर किसी शहादत के, बगैर किसी यकीन के लोग दिफाए मुस्तफ़ा के लिए, दिफाए इस्लाम के लिए निकलते हैं। अल्लाह उस दिन को हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन कहता है। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत और आपका मुदल्लल जवाब। और मैं समझता हूँ कि यौमुल फुरकान की आपने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। मेरे कुछ दोस्त जो नए शामिल हुए हैं मैं उनको वेलकम कहता हूँ। अमीन गुज्जर साहब काम पर हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। और अज़ीम मलक साहब हमारे साथ हैं, वो कैसर साहब से कह रहे हैं कि सजना ने माल लए ने, वो कलाम जो आपका कलाम हिजर है उसके चंद अशार, वो उनकी फरमाइश है आपके लिए। और मोहम्मद बिलाल यकूब साहिब हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, नेक ख्वाहिशात रखते हैं हमारे लिए। अल्लाह आप सब का साया, अल्लाह आप सब को सलामत रखे, आबाद रहें। मैं इल्तमास गुजार हूँ कैसर साबरी साहिब से, हम चाहते हैं कि अपने वक्त में रहते हुए आपसे भी कुछ फरमाइशी काम हैं जो आपने नाते पढ़नी हैं, और कुछ कलाम ऐसे हैं जो आप बता रहे थे कि आप शामिल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद हम वक्त ज़्यादा ना लें, आपसे ही इस्तिफ़ादा लिया जाए। तो अब कौन सा कलाम हमें अता कर रहे हैं? अभी तो मैं मुझे जो दोस्तों का हुक्म है वो पूरा करूँगा। बाद में एक मनक़बत है जो तबस्सुम साहब की लिखी है, वो ज़रूर सुनाइए। मौला कायनात का वो ज़रूर सुनाइए, वो पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। जी जी, लेकिन वो बाद में पढ़ूँगा, जी ज़रूर। वैसे वो पूरी तरह से सजना सजना मन नारे जे दूर दे जिंदगी गुजारना
کے سہارے حضور دے زندگی گزارنا کے سہارے حضور دے سہارے حضور دے کیا کہنے حافظ صاحب سبحان اللہ جنگی لباس کے ٹل گیا دلدار جانیاں تینو سج کے پیارے حضور دے رب بخشے تینو سج کے پیارے حضور دے آپ سب زندہ باد سبحان اللہ آپ سب سبحان اللہ رکھدا نہیں ڈر کدی غم دے طوفان دا رکھدا نہیں ڈر کدی میں غم دے طوفان دا ڈب دے نہیں کدی جو تارے حضور دے سبحان اللہ سبحان ڈب دے نہیں جو کدی تارے حضور دے اور استاد محترم ماشاءاللہ لکھتے ہیں سبحان اللہ میں کوئی نواں تے نہیں گدا کر حضور دا بہت خوبصورت مصرع ہے سبحان اللہ میں ازل تو دوارے میں کوئی نواں تے نہیں گدا کر حضور دا بیٹھا میں ازل تو دوارے حضور دے سبحان بسم اللہ۔ اللہ خوبصورت لکھا سبحان اللہ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ آمین آمین اللہم آمین نسبت سجر جنا دی نبی نال ہو گئی نسبت سجر جنا دی نبی نال ہو گئی ویکھن گے او حشر
ओ हशर नजारे हुजूर दे जिंदगी गुजार लांगे सहारे हुजूर। सहारे हुजूर दे। क्या कहने आप उस्ताद, माशाल्लाह सलामत माशाअल्लाह रहो। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, मालक सुभान आपको सेहत वाली लंबी वाह, जिंदगी अता वाह, करे। वाह, नाज़रीन, हाफिज़ साहब ऐसे सना खान हैं सुभान क़िबला अल्लामा साहब। जनाब। मैं भी नात की खिदमत के हवाले से कोशिश करता हूँ कि हजूर की नात के हवाले से चंद कलमात कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितने भी पढ़ने वाले गुजरांवाला के हैं जी या अच्छी समात रखने वाले लोग हैं, वो हाफिज़ साहब को ज़रूर पसंद फरमाते हैं। माशाल्लाह। और मेरे जो पसंदीदा सना खान 2-4 हैं, उनमें जनाब का नंबर शामिल है। और ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ इनकी शफ़क़त ख़ास है। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके शेख कामल का फैज़ आपको दिन दुगना रात चुगना अता करे। आज का जो मौजू चल रहा है, मैं उस हवाला से एक सवाल हजूर मेरे पास है कि ये ग़ज़वा बदर के जो खुसूसी वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं, ये वाक़यात ज़्यादा हैं, तो खुसूसन जो काबिल ज़िक्र हैं उस हवाला से थोड़ा इरशाद फरमाइए। जी, ग़ज़वा बदर के जो इनफरादी वाक़यात हैं उसका ताल्लुक़ जो है वो किसी एक फ़र्द के साथ है जी, माशाअल्लाह। एक या दो फ़र्द के साथ, इसी को इनफरादी वाक़यात इसीलिए कहते हैं। जहाँ तक मजमूई वाक़यात की बात है तो वो एक पूरे लश्कर के साथ जो पेश आए उसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर वक्त मिला तो। इनफरादी वाक़यात में सबसे पहला वाक़या जिसको बड़े अहसन अंदाज में मुहद्दिसीन ने कुतुब के अंदर नकल किया है जी, वो उस वक्त का वाक़या है जब हुजूर ग़ज़वा बद्र के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं। दो बच्चे आ जाते हैं, एक का नाम मुअव्वज़ है, एक का नाम मुआज़ है। जी जी, दोनों भाई हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है ये माशाअल्लाह। उसमें बड़ा एक खूबसूरत एक राज है। वो क्या है कि मुआज़ को हुजूर कहते हैं बड़े भाई को कि भाई अभी तू छोटा है उम्र में, तो तू जंग में जाने के काबिल नहीं, जंग बहुत सख्त है। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे जवानों के साथ खड़ा करके देख लें, मुझे जवानों के साथ खड़ा करके देख लें। जब हुजूर ने जवानों के साथ खड़ा करके देखा तो वो जवान ही नज़र आने लगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया ठीक है भाई तू आ जा, लेकिन तू नज़र आ रहा है कि छोटा है। दूसरे को कहा कि भाई तू जंग में नहीं जा सकता। उसने कहा या रसूलल्लाह ये सिर्फ दिखने में मुझसे बड़ा है, ताकत में मैं इससे बड़ा हूँ, चाहे तो लड़ाई करवा के देख लें, ये इनका फैसला हुआ, चाहे तो लड़ाई करवा के देख लें। अब हुजूर ने कहा कि चलो भाई तुम कुश्ती करो। जब वो कुश्ती करने लगे तो उसने कान में कहा यार ये तेनों भी पता है कि मैं तेनों उठा नहीं सकता, तू मेरे तो बड़े हैं, जज्बा ये तेनों भी पता मैं तेनों उठा नहीं सकता, लेकिन यार आज तू ना नीचे हो जाना, मैं ऊपर हो जाऊंगा, तारीख तुझे भी याद रखेगी, तारीख मुझे भी याद रखेगी। कोई भी तुझे ये नहीं कहेगा कि तू अपने छोटे भाई से हार गया, तुझे कोई तारीख में ये नहीं लिखेगा, तुझे सारे ही लिखेंगे कि ये वो है जो अपने भाई को मुस्तफ़ा पे कुर्बान करने के लिए तैयार कर रहा है। बात समझ आई ना? तो ये दोनों तैयार करके हुजूर जब इनके साथ ले गए, ये है जनाब के तारीख तुझे ये नहीं कहेगी कि तू अपने छोटे भाई से हार गया, तारीख तुझे इन लफ्जों से याद करेगी कि तूने अपने छोटे भाई को मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने के लिए तैयार किया। ये बड़ी लतीफ बात, सुभान अल्लाह। ये दोनों अल्लाह अजर अज़ीम अता करे। ये दोनों जब गए तो अभी जंग का आगाज़ नहीं हुआ, तो एक ख़ास वाक़या जो है वो ये है कि आपको मालूम है ग़ज़वा बद्र में यहाँ मक्का है, दरमियान में मदीना है और यहाँ मुल्क शाम है। मक्का का तकरीबन उस वक़्त आबादी जो है वो तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब मुफस्सिरीन ने लिखी है, मुहद्दिसीन ने। तो उन सब का सालाना तिजारती माल लेकर अबू सुफियान जो उस वक़्त अभी तक मुसलमान नहीं हुए वो शाम गए हुए हैं। तो वापसी पे उन्होंने मदीने के रास्ते जाना है, तो उधर ये अफवाह फैल गई कि ये हमारा काफ़िला जो है ये मुसलमान ले लेंगे। तो सारा तिजारती सामान, कुछ मुसलमान इस हक़ में थे कि हम हिजरत करके आए हैं, हमारे पास अभी रहने के लिए घर भी नहीं है, माली हालात भी बड़े कमज़ोर हैं, तो क्यों ना हम इस लश्कर को इसके साथ मुठभेड़ करें, हमें माली फ़ायदा भी होगा।
اس کا قرآن مجید यहाँ पे जिक्र भी करता है। लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और ही था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, इसके साथ नहीं, तुमने उस लश्कर के साथ लड़ना है। अबू सुफियान ने चालाकी ये की कि वो जो मशहूर रास्ता था उससे हटकर जो निस्बतन दूर रास्ता पड़ता था, अपना सामान तिजारती काफिला महफूज रास्ते से लेकर निकल गया। जब वो निकल गया तो उसने पैगाम भेजा मक्के में कि भाई तुम्हारा काफिला महफूज है, लड़ने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा वापस आ जाओ। लेकिन अबू जहल एक जासूस भेज चुका था कि जाओ पता करो मुसलमानों की लश्कर की हालत क्या है। उसने कहा जी उनके पास वो तलवारें भी नहीं हैं, उनके पास घोड़े भी नहीं हैं। कहा तादाद बड़ी महदूद तादाद थी, चंद 300 के लगभग उसने अपने अंदाजे के मुताबिक बताया। सुभान अल्लाह। उसने कहा वो तलवारें छो, रस्सियां तैयार करो, रस्सियां तैयार करो, हमने कल उनको बांध के मक्के ले जाना है। उधर वो रस्सियां तैयार कर रहा है, इधर एक दिन पहले वो उन्हीं गुलामान मुस्तफ़ा को जो बगैर किसी यकीन के, बगैर किसी मुशाहदे के हुजूर पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए हैं ना, हुजूर ने कहा आओ मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें ये नज़ारा करवाता हूँ, जो हुजूर पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है ना, मोहम्मद कभी उसको मायूस नहीं करता है। आओ मैं तुम्हें ले जाऊँ। हुजूर एक दिन पहले मैदान का दौरा कर रहे हैं, छड़ी हुजूर के हाथ में है और अभी जंग होनी है, और हुजूर छड़ी लेकर निशान लगा रहे थे, कहते हैं हाजा मक्तल अबी जहल, यहाँ वो मरेगा, यहाँ अबू जहल मरेगा, हाजा मक्तल उतबा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ वलीद मरेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने वहाँ पे निशान लगा दिए। मैंने वहाँ, हालांकि निशान लगाने से ये मुराद नहीं कि उन्हें कोई शक था। शक होता, यहाँ पे बहुत लोगों ने लिखा है कि हो सकता है कि शक की बिना पर लगाए। अगर शक होता तो जब निशान लगाए थे उस वक्त एतराज़ करते, बेशक उस वक्त एतराज़ करते या रसूलल्लाह अभी तो जंग होनी है और हालत ये है कि हमारे पल्ले तो असला है ही नहीं, हम तो बाले लेकर आए हुए हैं, लकड़ियाँ लेकर आए हुए हैं तलवारों के मुकाबले में। लेकिन 313 में किसी मुहद्दिस ने, किसी मकतबा फ़िक्र के किसी मुहद्दिस ने, उर्दू अरबी में अंग्रेज़ी किसी ज़ुबान के किसी मुहद्दिस ने ये नहीं लिखा 313 में किसी एक ने भी एतराज़ किया हो, किसी एक ने भी सवाल किया हो, और निशान लगा दिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि सुबह हुई, जंग अपने उरूज पर है। वो एक इनफरादी वाक़या मैं जिक्र करूँगा इस वाक़े के बाद, क्योंकि अभी हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ की बात चल रही है। हुजूर ने जब निशान लगा दिए, ये लश्कर में मशहूर हो गया कि भाई बड़े बड़े सरदार खड़पैंच जो है ना वो कल वासल जहन्नम होने वाले हैं। तो जब सुबह हुई तो अबू जहल ने जब देखा कि जो इनफरादी लड़ाइयाँ हैं उसका जिक्र बाद में करूँगा, उसमें हमें शिकस्त हो गई है, तो अब जो है ना वो मिलकर जंग करो, अब मुठभेड़ करो, जो जिसके हथे चढ़ता है मार दो। तो लश्कर जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गया। ये दो बच्चे जो हैं मुआज़ और मुअव्वज़, जिनको मैं सिलेक्ट होने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आर्मी में सिलेक्ट कैसे हुए, ये कभी किसी से पूछना है ओए अबू जहल किथे वे, पूछते फिर रहे हैं, पूछते फिरते हैं कभी उससे अबू जहल किथे वे। वो जो मुसलमान जो अंसारी हैं वो जंग के मैदान में हैं, वो उनकी बात आई गई करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इतने में वो पहुंच गए अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें कहने लगे चाचा अबू जहल किधर है? उन्होंने कहा तुमने क्या करना है? कहा हमने उसको मारना है। उनकी बात देखें, कुर्बान जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उससे लड़ना है, हाय हाय हाय, कहा मारना है, कहा उसे मारना है। उसने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में तलवारें भी तुम्हारे साइज की हैं, छोटी छोटी, जिस ऊंटनी पर वो बैठा हुआ है तुम्हारी तो तलवार उसकी पैर तक भी नहीं पहुंचना, और तुम चले हो उसको मारने। कहा चाचा आपको किस बात का गम है? क्या हुजूर ने नहीं कहा अबू जहल मरेगा? कहा चाचा आपको किस बात का गम है? हुजूर ने नहीं कहा अबू जहल मरेगा? कहा सॉरी, कहा तो है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि जब बच्चों को मैंने ये बात बताई और बताया कि वो ऊँटनी पर सवार है, बच्चे शेर की तरह लपके, और मुझे नहीं पता कि उनकी तलवार ने उनको गिराया या उनके जज्बे ने उनको गिराया, या वो पहुंचे उधर वो गिर गए। अबू जहल ऊँटनी से नीचे गिर गया, ये दोनों भाई अपनी नन्ही तलवारों से उसके टुकड़े करने लग गए, और जहां जहां उसका बस चला उसने तलवार का वार किया। जब इकरमा ने देखा कि मेरा बाप तो ऊँटनी से गिर गया है, अभी तक ये भी मुसलमान नहीं हुआ, ये पीछे से इसने हजरत मुआज के बाएं कंधे पर वार किया और कंधा उतार दिया, सिर्फ एक बोटी छोटी सी साथ रहेगी जो जिस्म के साथ है। जब ये कंधे पर वार हुआ तो पीछे मुड़ के देखा, जब पीछे मुड़ के देखा तो तलवार दाएं हाथ में है,
उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देख के उसके पीछे दौड़ पड़े, उसके पीछे दौड़ पड़े। अब उसकी दहशत, बच्चे की दहशत इतनी थी कि अकरमा मुकाबला ना कर सका, वो बच्चे के आगे लग के दौड़ गया। और जब आगे लग के दौड़ा तो उसने देखा कि ये जो बाजू लटक रहा है ना, ये रुकावट डाल रहा है। पाँव के दिए नीचे दिया और खींचा और बाजू उतार के उधर फेंक दिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। इतने में अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ज़माने जाहलियत में हुजूर की दावत कबूल करने से पहले ये बकरियां चराया करते थे। कुर्बान जाएं, बकरियां चराने वाला हुजूर के दीन के लॉ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा वकील बना है। वाह वाह वाह, उम्मत का उस्ताद बना है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये गए, जब अबू जहल को नीचे देखा ना तो उनको एक वाकया याद आ गया कि बकरियां चराते हुए इसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो उसकी गर्दन पर पैर रख के ना मसलने लगे, ओ बेईमाना, आज मेरे हाथ चढ़ गया तू। तो उसको आखिरी बार अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने करके उसको जहन्नम वासिल किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, जंग खत्म हो गई, मैं उन निशानों की टो में लग गया जो मैंने रात को लगाए थे। वाह वाह वाह। मैं जाके मैदान का दौरा किया, कहा मुझे अपने पैदा करने वाले की कसम है, जहां कमली वाले ने निशान लगाए थे 1 इंच भी इधर उधर काफर नहीं मरा, उसी जगह पे मरा। अब ये है मैदान के जंग के बाद का वाकया। जंग शुरू कहां से हुई हुजूर, बड़ी काबिल तवज्जो बात है बिस्मिल्लाह अता कीजिए कि शैबा ने, उतबा ने एक दिन पहले जब अबू सुफियान का पैगाम दिया, मिला कि भाई काफिला महफूज है, उसने ना उसकी तायीद की कि भाई काफिला महफूज है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये वैसे ही तबीयतन सुलह पसंद था उतबा। इसके बारे में आता है कि यह हुजूर की दावत कबूल करते करते रह गया, सिर्फ सरदारी आड़े आ गई, वरना हुजूर के साथ इसकी बातें रवायात के अंदर हैं जो तन्हाई में हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि ये इस हद तक पहुँच गया था कि मैं आप पर ईमान ले आऊँ, लेकिन बदकिस्मती गालिब आ गई ना, ये ईमान ला सका। अब इसको ना इसको ये ताना मिला कि भाई तू बुज़दिल है और उधर तेरा बेटा हिजरत करके गया है हुज़ाफ़ा, इसलिए तू अपने बेटे के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, इसलिए तू बुज़दिली दिखा रहा है। तो ये सबसे पहले मैदान में निकला काफिरों की तरफ से। इसने कहा कि मैं सबसे पहले मैदान में निकलता हूँ और मेरे साथ मेरा भाई निकलेगा और मेरा बेटा वलीद निकलेगा। ये 3 निकले। इसने मैदान में जाकर नारा लगाया, अईना मुबारिज़िन, कड्डों को मुकाबले। ये अरब की लड़ाइयों का रवाज था कि ललकारते थे, जो जंगजू होते थे वो ललकारते थे। जब उसने ललकारा तो हुजूर ने 3 अंसारियों को भेजा। अब जब अंसारी उसके सामने गए तो उसने कहा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ कबीले से हूँ। कहा, उसने कहा कि हमारी तुम्हारे साथ तो लड़ाई नहीं है। यहाँ पंजाबी का एक मुझे जुमला याद आया, अगर इजाज़त दें तो। वो कहने लगे, तानू छड़ दईए ते फिर भी असीं मरने ते तानू मार दिए ते साडा फिर भी कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तुम हमारे कैलिबर के नहीं हो। तुम्हें मार दें तो हमारी बेइज्जती है, अगर तुमसे मर जाएं तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सुभान। उन्होंने कहा कि भाई उनको भेजो जो हम में से तुम्हारे पास गए हैं। हाँ, हमारे हुजूर ने वापस बुला लिया। हुजूर ने कहा, पहला नाम जो हुजूर ने लिया, फरमाया अईना अली, अईना अली। जब अली का नाम लिया, अली जुल्फकार लहराते हुए हुजूर के सामने आ गए। अर्ज की, या रसूल लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। या रसूल, आपने अली को याद किया, अली आपके सामने हाजिर है। फरमाया अईना हमजा, हमजा किधर है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब का वो शाह सवार है कि जिसके जो दोनों हाथों से तलवार लड़ता था और एक तलवार का वज़न रावी ने 18 किलो लिखा है। 36 किलो की तलवारें उठा के लड़ना और शेर का शिकारी, जिससे हज़रत अमीर हमज़ा, जिससे आजकल बॉडी बिल्डर होते हैं ना, इनकी वज़ाक़ता रावियों ने ये लिखी है कि जब ये बाज़ार से गुजरते तो लोग पीछे से इनको देख कर राहें भरते, क्या खूबसूरत जवान जा रहा है। तो ये निकले बाहर। अब यहाँ पे ये खुसूसियत भी बड़े बड़े सहाबाए कराम की बड़ी बड़ी खुसूसियात है। ये खुसूसियत भी मौला कायनात हैदर कर्रार के हिस्से में आई है। इस्लाम की पहली जंग का आगाज करने वाला भी मौला अली है। इस्लाम की पहली जंग का आगाज करने वाले मौला अली हैं। और ये है वलीद के मुकाबले में। वलीद वो है जिसे रुस्तम अरब कहा जाता है जी, और जो 70 से ज़ायद जंगें लड़ चुका है। और इसके बारे में मशहूर था कि ये 10-20 पहलवानों को तो कुछ समझते ही नहीं है, अकेले लड़ जाता है। अब ऐसे बंदे को लोग ये समझते थे कि इसको इंसानी ताकत नहीं हरा सकती, हाय इसको इंसानी ताकत नहीं हरा सकती। हुजूर ने भी
उन लोगों की इस बात का पास रखा, कहा ठीक है जो इंसानी ताकत के साथ जाएगा वो हो सकता है ना हराए, मैं इसके मुकाबले में अल्लाह के शेर को भेज रहा हूँ। वाह वाह वाह। मैं इसके मुकाबले में अल्लाह के शेर को भेज रहा हूँ। तो वलीद को हज़रत अली ने मारा सबसे पहले, उतबा को हज़रत अमीर हमज़ा ने मारा, और तीसरा जो आपने बंदा खड़ा किया वो आपने चचा ज़ाद को हज़रत अबू उबैदा जर्राह को खड़ा किया, वो शैबा के मुकाबले में। ये इनफरादी वाक़यात जो हैं ये इतने खूबसूरत हैं कि इसकी एक तवील दास्तान है। हम ख़ास ज़िक्र मौला कायनात का इस हवाले से करना चाहते हैं कि 70 काफर मरे इस जंग में, जिनमें से रावी कहता है, बाज़ रावियों ने लिखा जिनमें से 70 में से 50 काफर सिर्फ मौला अली ने मारे, और सारे सरदार, सारे सरदार जंगजू। 50 काफर सिर्फ मौला अली की तलवार से मरे हैं। और ये जो है ना सुबहान अल्लाह, ये इनफरादी वाक़यात एक तवील दास्तान है। हम इन दो पर इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह पाक हमें इनसे माशाअल्लाह फैज़ नसीब करे। आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा हमतन गोश हो के हम सब ने सुना। और ये यकीन कीजिए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इतनी खूबसूरत है सुभान अल्लाह कि ये ईमान को तो खुशब देता है, इस वक्त बैठे हुए तबीयत एनर्जेटिक हो जाती है। बेशक ये इतना खूबसूरत एक मौजू है। अली के नाम से आज भी खैबर कांप जाता आज भी काम जाता है। और अली नाम ही तवानाई वाला है। वाह। जिक्र अली जब आ जाए तो ये जो तबीयत में सुस्तियां हैं, ये जो काहलियां हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। बेशक। अली के नाम की हरारत ऐसी है। बेशक। अब जो मौजू चल रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा दायां बायां बराबर हो। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ ये तराजू का जो एक दरमियानी जो एक पिलर है जिस पे मैं इस वक्त सवार हूँ, मेरी बाईं जानब से भी जिक्र मौला अली आना चाहिए। वाह। मैं चाहता हूँ कि मौला कायनात की बारगाह में ये कसीदा क़िबला हाफ़िज़ साहब से हम सुनते हैं आखिरी, तो उसके बाद एक सवाल है मुख्तसरन, उसका 2 मिनट में मैं जवाब लूँगा और क़िबला दुआ फरमाएंगे, हम आपसे इजाज़त ले लेंगे। अता कीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूं बढ़ाई है खुदा ने आबरूए मुर्तज़ा, यूं बढ़ाई है खुदा ने आबरूए मुर्तज़ा, डाल दी हर सच दिल में आरज़ूए मुर्तज़ा, डाल दी सुभान हर अल्लाह। सच दिल में आरज़ूए मुर्तज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अकीदे में मुरीदे हज़रत अम्मार हूँ। माशाअल्लाह। मैं अकीदे में मुरीदे हज़रत अम्मार हूँ। है सरे मख्तर भी मुझको जुस्तजूए मुर्तज़ा, है सरे मख्तर भी मुझको
شام کے تارے ہلا پلٹے علی کو دیکھ کر شام کا سورج بھی لوٹا یا تھا سوے مرتضیٰ شام کا سورج تو لوٹا یا تھا سوے مرتضیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے نیاز دولت دنیا فانی ہو گیا بے نیاز دولت دنیا فانی ہو گیا جب سے تبسم پالتوئے مرتضیٰ یوں بڑھائے ہے خدا نے آرزوئے مرتضیٰ. ماشاءاللہ بہت خوب, بڑا خوبصورت کلام صاحبزادہ ابو بکر شفیق تبسم شاذلی صاحب کا, آپ کا لکھا کلام بڑی خوبصورتی سے حافظ صاحب نے پیش کیا. اللہ ہماری حاضری اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اب میرے پاس مختصراً ایک سوال کا جواب لینے کے لیے آپ سے 2 منٹ درکار ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور آپ سے اجازت لے لیں گے. حضور آخری سوال ہے اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے, فرشتوں کی مدد اور نصرت کے پیچھے کیا محرکات سے مختصراً ارشاد فرما دیجیے. جی, جب فرشتوں کی مدد اور نصرت قرآن مجید نے 2 جگہ پہ ذکر کی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ 3000 فرشتے اترے. ایک جگہ ارشاد فرمایا بخمسۃ آلاف 5000 فرشتے اترے. آج بھی غزوہ جو میدان بدر ہے اس کے ایک طرف ریت کا ایک پہاڑ آج بھی ہے جسے جبل الرمات جبل الملائکہ بھی کہتے ہیں, جہاں پہ فرشتے اترے تھے. وہ عجیب و غریب معجزاتی پہاڑ ہے. ریت کا پہاڑ دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے میدان بدر کے. اور اس ریت کے پہاڑ کی اس کے اوپر اس کو معجزہ کہہ لیں, اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ ریت وہاں سے اڑ کر کہیں جاتی بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے. الحمدللہ ہم نے اس میدان بدر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے. اس سوال کا تعلق آزاد بھائی خالص عقیدے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ قدرتوں والا مولا وہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لشکریوں کی 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی. قدرتوں والا خدا, میں ایک جملے میں جواب دے کے بات کلوز کر رہا ہوں. قدرتوں والا خدا اپنے سب سے محبوب لشکریوں کی وسیلے کے ذریعے مدد کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرتوں والا خدا, قدرتوں والا جو چاہے تو اسرائیل کو کہے سب کی روح قبض کر لو, فوراً کر لے. اس کی کیا مجال کے نہ کرے. وہ چاہے تو اسرائیل کو بھی نہ کہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ کن کہے فیکون ہو جائے. لیکن قدرتوں والا خدا, جملے پہ غور کیجئے گا, سب کچھ کر سکنے والا خدا, قدرتوں والا, ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا حامل خدا اپنے سب سے محبوب لشکریوں کی وسیلے کے ذریعے مدد کرے. وسیلے کے ذریعے مدد کرے. اور ہم بے قدرتے جو کچھ کر نہیں سکتے, اگر وہ وسیلے کے ذریعے مدد کرے تو شرک نہ ہو. اگر وہ وسیلے کے ذریعے مدد کرے تو شرک نہ ہو, اور اگر بے قدرتے وسیلے کے ذریعے مدد مانگ لیں تو پھر شرک کہاں سے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے مدد کرتا ہے. اب یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. جس کی فرشتے مدد کرے نا وہ اور چیز ہے. اب مدد کرنے میں بڑا فرق ہے
کسی کی فرشتے مدد کریں تو بڑی اچھی بات ہے، کسی کا علی مدد کرے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حسین بات۔ فرشتے جتنی مرضی اونچی اڑان اڑ لیں، علی کو تو نہیں نا پہنچ سکتے، ہاں جی، علی کو نہیں پہنچ سکتے، پھر علی کے بعد علی کے آقا کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی حضور کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس میں شرک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اگر قدرتوں والا خدا وسیلے کے ذریعے مدد کرتا ہے تو ہم وسیلے کے بغیر جو ہے نا وہ مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی وسیلے کے ذریعے ہی مانگنی چاہیے، اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ اور بھی بڑے معاملات ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو جب تبصرہ ہوا نا، بعد میں مجاہدین کا آپس میں تبصرہ ہوا، کہنے لگے یار وہ فلاں میرے سامنے آ گیا، فلاں میرے سامنے آ گیا، میں انج لڑیا، میں انج لڑ، یہ سارے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار عجیب و غریب بات تھی، ہمارے پاس بالے تھے، تلواریں تو 8 ہی تھی ساری، ہم بالا اٹھانے کے مارنے کے لیے اٹھاتے، ہمارے بالا مارنے سے پہلے کافر پہلے ہی مر جاتے تھے۔ ہاں یہ بات لکھی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھا جو ہم سے پہلے مار دیتا ہے؟ فرمایا یہ 3000 اترنے والے فرشتے تھے، سبحان اللہ، یہ 5000 اترنے والے فرشتے تھے، تم بالا اٹھاتے تھے، وہ اس کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے کہ تم مارو، تمہارے مارنے سے پہلے ہی فرشتہ اس کا سر اتار دیتا تھا۔ اس لیے لیکن حاضرین گرامی قدر، یہاں علامہ کا شعر عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں، یہ فرشتے اس وقت اترے جب 313 حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں تو فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ عالم اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فرشتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن بدر کی فضا پیدا کرنی ضروری ہے۔ کون سی فضا؟ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں بات ختم کروں گا کہ کسی بات کا یقین نہیں لیکن حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہی فضائے بدر ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت، ایک بڑے خوبصورت موقع پہ اور واقعے پہ آگے آپ نے اس کو سمیٹا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ کل کی جو نشست ہے اس میں جو باقی آپ کی جو فرمائشیں ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں، اظہار ہیں، وہ انشاءاللہ کل شامل ہوں گے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا۔ حضور مختصراً دعا فرما دیجئے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہمارے وابستگان ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ جو لوگ بیمار ہیں، وبا کی صورتحال سے دوچار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور ہمارے بڑے محترم اور معتبر ہیں میاں جی عبد الرحمن صاحب لالا موسیٰ سے، ان کا ایک کوئی ہے قریبی جس کا ایکسیڈنٹ کل ہوا، وہ بڑی حالت ان کی زیادہ خراب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی صحت یابی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و آبائہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ الہ العالمین، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ یہ جو بدر میں لڑنے والے ہیں ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اے الہ العالمین، تجھے ان بدریوں کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دست فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو ہمارے وابستگان ہیں کسی بھی چھوٹی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں سب کے ساتھ خیر اور فضل کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو اتفاق اتحاد محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآبائہ